Hello students, welcome back to our class, and today's topic is staffing process. This is the part of staffing, and in previous video we discussed about the staffing, what is staffing actually is, and what are the importance of staffing and what is the need of staffing. So let's continue to the topic. What is the staffing process? This is the part when we are filling the vacant place in our firm. So we took a step by step process. So that step which we are taking to filling that part or that vacant place, so that steps are known as staffing process. Okay, so come to the points. Staffing is not a one time activity. Staffing is a continuous process which used to fill the vacant place by right people to the right job. Yes students, you get this quote in every topic in staffing because this is a main thing कि right people to the right job. आपको एक अच्छा व्यक्ति अच्छे जॉब पे, अच्छे पोस्ट पे, एक जिसको जिस तरह की जॉब चाहिए उसको उस तरह के पोस्ट पे आपको रखना, दिस इज अ स्टाफिंग. तो अब स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. व्हाई दिस इज बीइंग सेड हियर? बिकॉज कि स्टाफिंग जो है वो एक बार करके आप खत्म नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आपने अपने फॉर्म में यू रिक्रूटेड 10 पीपल्स और 15 पीपल्स एंड दैट्स इट, फॉर यू आर फ्री फॉर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको टाइम टाइम पे स्टाफिंग करनी पड़ेगी, लोगों को अपने प्लेस पे रखना पड़ेगा. व्हाई इट इज नेसेसरी? दिस इज नेसेसरी बिकॉज सम पीपल्स लीव योर firm or some people's retired, or you fire someone, or you expand your business and you have a place for a new job. तो आपके यहाँ पे नई नई प्लेसेस, नई नई चीजें आती रहती हैं, उसके लिए आपको स्टाफिंग करना पड़ेगा. तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड in this process these steps are taken like estimating manpower, recruitment, selection, training, development. These are the process or these are the steps taking in the staffing. So students, staffing is very important of the staffing process. So this is the quote, or basically this is the phrase which is quoted in your book, and this is very important phrase. Just read this: water water everywhere and not a drop टू ड्रिंक. इसका मतलब क्या हो गया? बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम लोग पानी पानी तो हर जगह देखते हैं कि अपने अर्थ पे हमारा अर्थ जो है 1/3 पार्ट जो है पानी है, बट वी हैव नॉट एनी सफिशियंट वाटर. क्राइसिस रहती है ड्रिंकिंग वाटर की, पीने के पानी की. देखिए आप कितनी क्राइसिस होती है. इसी तरीके से हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ पे अपने आसपास, अपने इन्वायरमेंट में, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल्स, बट अ गुड पीपल फॉर गुड जॉब इज फ्यू. बहुत ही क्राइसिस है, एंड in that few persons if we get a right people for the right job, so it means we done a good staffing or we follow a good staffing process. So thus come to the point. In process of staffing, just be careful while selecting staffs, because these are people who help to compete with your competitors. Yes, obvious सी बात है कि आप जब एक सेलेक्ट कर रहे हैं स्टाफ्स को, तो आपको उन स्टाफ्स को सेलेक्ट करते टाइम बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा. यू आर वेरी केयरफुल. व्हाई? बिकॉज दीज आर द स्टाफ्स हु compete with your rivals or with your competitory firms. Students, each and every firm has a same amount of capital, same technology. Basically सभी के पास same amount of capital. किसी के पास थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है. उनके पास टेक्नोलॉजीज, दे एडवांस देयर टेक्नोलॉजीज, टाइम पे टेक्नोलॉजीज एडवांस करते रहते हैं. बट वाई एनी फर्म इज ग्रोन अप एंड वन फर्म इज गो डाउन? बिकॉज ऑफ स्टाफ. व्हेन यू हैव अ गुड स्टाफ, देन you get a growth in your firm, and if you have not a good or not passionate staff, then your firm get down. So staffing is very necessary, and staffing is the main function of your staffing, and these are the points. And we discussed about estimate, what is estimating manpower, what is recruitment, what is selection, what is training in next topic. So come to the next topic. Students, here is the process of staffing, how we do the staffing
what are the steps taken for staffing. So let's see it. First is estimating the manpower requirement. What it means, manpower requirement? Manpower requirement means how many peoples we have to work or how many peoples we want to work in our organization. That is, and this is divided into two parts, that workload analysis and workforce analysis. What is workload analysis and what is workforce analysis? Workload analysis means कि we analysis how much work we have in हमारे organization में कितना work है करने के लिए, and workforce analysis means कि कितने लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए, हाउ मच पीपल वी हैव टू डू दैट वर्क. इससे हमें क्या पता चलता है, वी गेट द पॉइंट कि इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और इन आवर फर्म देयर इज ओवर स्टाफिंग और अंडर स्टाफिंग. हम ओवर स्टाफिंग की कंडीशन में हैं कि अंडर स्टाफिंग की कंडीशन में. थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा. इफ यू हैव अ वर्क ऑफ ओनली 100 पीपल्स, आपको 100 लोगों की जरूरत है किसी भी काम को करने के लिए, बट यू हैव 120 पीपल्स, इट मीन्स यू आर इन द कंडीशन ऑफ ओवर स्टाफिंग. आपके पास बहुत सारे स्टाफ हैं, तो अननेसेसरी आपके पास हैं. एंड इफ यू हैव अ वर्क ऑफ 100 पीपल्स एंड यू ओनली हैव 90 पीपल, तो you are in the condition of what? You are in the condition of understaffing. यहां पे क्या हो गया, आपके पास काम करने के लिए 100 लोगों की जरूरत है बट 90 पीपल्स हैं, एंड इसका फर्क ये पड़ेगा कि आप अननेसेसरी वर्कलोड अपने स्टाफ्स को प्रोवाइड करेंगे जिससे वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, उनकी मेंटल कंडीशन भी बिगड़ सकती है ज़्यादा काम करवाने की वजह से. तो हमें एक एडिकेट कंडीशन पे रहना पड़ेगा कि ना बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफिंग हो और ना ज़्यादा अंडर स्टाफिंग हो. तो इसके लिए वी जस्ट एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट. तो वर्कलोड एनालिसिस हम करते हैं एंड वर्कफोर्स एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हमारे पास कितना वर्क है, हाउ मच वर्क वी हैव एंड हाउ मच पीपल वी नीड फॉर दैट डू दैट वर्क. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो सेकेंड टॉपिक इज रिक्रूटमेंट. व्हाट इज रिक्रूटमेंट? अब आपने देखा रिक्रूटमेंट में हमें एक्चुअली जब हमने एनालिसिस किया वर्कफोर्स का, तो हमें पता चला कि वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ 10 पीपल्स, 10 पीपल्स की हमें जरूरत है. सो हमने क्या किया, वी जस्ट एडवर्टीज और वी जस्ट गिव द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर और एनीवेयर एल्स कि हमें 10 पीपल्स की जरूरत है. तो दिस इज द रिक्रूटमेंट, और रिक्वायरमेंट हमें है, हमने रिक्रूटमेंट किया उसके लिए. फिर इसमें भी दो प्रोसेस आता है. फर्स्ट इज इंटरनली. इंटरनली में हम ये देखते हैं कि हमारे प्लेस में, वर्क प्लेस में जो प्लेस वैकेंट है, इज द एनीवन इन फ्रॉम आवर इंटरनल स्पेस और दैट इज एक्चुअली वर्किंग इन आवर फर्म. तो क्या वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए एप्लीकेबल है? तो हम वहाँ से देखते हैं कि हमारे पास जो मैन पावर है, हमारे पास जो वर्कफोर्स अवेलेबल है, क्या उसमें से कुछ लोग हैं जो उस वैकेंट प्लेस को फिलअप कर सकते हैं. इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटीज इन दैट कंडीशन, सो वी जस्ट रिक्रूट और जस्ट वी ट्रांसफर देम और वी दैट प्रमोट देम इन दैट प्लेस. तो इंटरनली हो गया. और एक्सटर्नली मीन्स हम बाहर से एडवर्टीजमेंट देके हम बाहर से रिक्रूट करते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू. So this is the process, recruitment internally and externally. One important point in recruitment is कि if you have a place of 10 people, जैसा अभी आपको बताया मैन पावर एस्टिमेशन में रिक्वायरमेंट में हमने देखा हमारे पास 10 पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, एंड वी गेट एप्लीकेशन और एप्लीकेंट ऑफ 500 पीपल्स. हमारे पास 500 लोगों की एप्लीकेशन आ गई. सो स्टूडेंट समझिए हमारे पास कितना चांसेस है. हमारे पास पर्टिकुलर एक प्लेस के लिए 500 पीपल्स हैं. सो हम उनमें से एक 10 बेस्ट पर्सन्स को चूज कर सकते हैं अपने इस प्लेस के लिए, वैकेंट प्लेस के लिए हम बेस्ट लोगों को हायर कर सकते हैं. तो एक फ़ायदा होता है रिक्रूटमेंट का कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगी तो हमें राइट पीपल टू राइट जॉब का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, हमारे पास राइट पीपल्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे.
एंड आफ्टर रिक्रूटमेंट वी डू द सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी एप्लीकेंट्स आए होते हैं, एप्लीकेशंस आए होते हैं, उन एप्लीकेशंस में से हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर आर जॉब, हमारे पर्सन जॉब के लिए। तो कई स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स आर टेकिंग, दैट आर पर्सनल इंटरव्यू, IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड मैनी मोर। और भी जो हमको जरूरत पड़ती है हम उसको करते हैं। व्हाट इज पर्सनल इंटरव्यू? आप सभी लोग जानते हैं पर्सनल इंटरव्यू में द रिक्रूटर्स टेक अ नॉलेज ऑफ द पीपल हु इज एप्लीकेंट, उसके बारे में पता करते हैं, जानते हैं कि क्या काम करता है, क्या करता था पहले, दैट ऑल। उसके बाद IQ टेस्ट, आपकी बुद्धि है, कितना काम है, आप कर सकते हैं उस काम को कि नहीं। एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका एप्टीट्यूड क्या है, मीन्स कि आप समझ लीजिए यू आर रिक्रूटेड फॉर अ जॉब ऑफ टीचर, आप एक टीचर के जॉब के लिए रिक्रूट हो रहे हैं। अब आपका एप्टीट्यूड क्या है, इफ यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड और अ कूल पर्सन, अगर कोई स्टूडेंट्स आपसे वही क्वेश्चन बार बार 10 बार पूछ रहा है एंड यू गेट टेम्पर्ड, आपको गुस्सा आ गया क्यों ये पूछ रहा है, तो वहाँ पे एप्टीट्यूड, आप उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपको वो पोस्ट नहीं मिल पाएगी। आपको एक टीचर है तो आपको कूल माइंड होना चाहिए, जितनी बार स्टूडेंट आपसे पूछेंगे उतनी बार आपको आंसर करना पड़ेगा। तो दिस इज एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका एप्टीट्यूड देखा जाता है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर्सनल एबिलिटी आपकी क्या है, कैसे आप मार्केट में या फिर कैसे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के पीपल्स के साथ बिहेव करते हो, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, टेस्ट करते हैं, जहाँ जहाँ जैसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती हैं। तो दिस इज नोन एज सिलेक्शन, वी सेलेक्ट द पीपल्स from the applications we have collected। तो इसमें से हम ये कर लिए। एक लास्ट टॉपिक कि सो स्टूडेंट्स, तो सिलेक्शन इज अ निगेटिव प्रोसेस। व्हाई दिस इज निगेटिव प्रोसेस? जस्ट रिलेट टू दिस वन, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मैंने आपको बताया था दैट रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। क्यों पॉजिटिव प्रोसेस है? बिकॉज वी गेट अ लॉट्स ऑफ चॉइस टू सेलेक्ट इन वेरियस वैकेंसीज। छोटे वैकेंसीज में से जैसे हमें 10 पीपल्स की जरूरत थी, तो उन 10 पीपल्स में से हमें रिक्रूटमेंट आ गया मेरे पास, एप्लीकेशंस आ गया मेरे पास 500। तो उस 10 प्लेस के लिए वी हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, 500 चॉइस है हमारे पास। उन 500 में से हमें सेलेक्ट करना है, तो हम उसमें से बेस्ट पीपल्स निकाल लेंगे। हमारे पास पॉजिटिवनेस आ गई कि लॉट ऑफ चॉइस है हमारे पास। और इसी को जब हम इससे रिलेट करेंगे सिलेक्शन से, तो सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, सिलेक्शन में हमने क्या किया कि उन 10 प्लेसेस के लिए अब हमें ओनली 10 पीपल्स ही सेलेक्ट करेंगे। जब 10 पीपल्स सेलेक्ट करेंगे तो 490 पीपल्स को क्या करना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स, दैट 490 पीपल्स इज डी सेलेक्टेड बाई अस, हमारे द्वारा वो डी सेलेक्ट किए जाएंगे। और जब वो डी सेलेक्ट किए जाएंगे तो वो निगेटिव प्रोसेस हो जाएगा। जब हमारे पास कोई चीज़ आ रही है तो दैट इज पॉजिटिव, जब हमारे पास से वो चीज़ जा रही है तो निगेटिव, तो हम उसको निगेटिव प्रोसेस में लेते हैं। सो दिस इज सिलेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सो आपने स्टूडेंट जितने भी पीपल्स को आपने सेलेक्ट किया था बाय सिलेक्शन प्रोसेस से, उन्हीं पीपल्स को अब आप उनके वर्क को देंगे जहाँ पे वो काम करने के लिए आपने सेलेक्ट किया है, जिस प्लेस पे आपने सेलेक्ट किया उनको काम करने के लिए, जस्ट यू अपॉइंटेड ऑन दैट प्लेस। जब आप उनको उस प्लेस पे अपॉइंट कर देंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज placement and orientation is a familiar process, that is a get together। अब जब आपने लोगों को सेलेक्ट करके रखा, प्लेसमेंट किया, तो उन पीपल्स को अब काम करने के लिए अपने जो कलीग्स हैं, अपनी जो आसपास के स्टाफ्स हैं, इन्वायरमेंट है आपके कंपनी का, उसको समझने की ज़रूरत पड़ती है कि उन वहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसे वो काम करेगा उनके बीच में। तो उसके लिए आप क्या करते हो, ओरिएंटेशन करते हो, एक छोटा सा गेट टुगेदर रखते हो जिसमें कि वो पीपल्स आते हैं और मिलते हैं अपनी कलीग्स से जिनके साथ उनको काम करना है। तो दिस इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। Next is training and development, and what is the process of training and development? In training and development हम अब इन peoples को जब रखे हैं तो अब इनकी development करना है। When they develop then our firm also develop, so we give the training to them। हम उनको काम करने की ट्रेनिंग देंगे, किस
प्रोसेस पे हम काम करते हैं, हम कैसे काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को हमें उनको सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग, व्हेन दे डू द ट्रेनिंग दे डेवलप देमसेल्फ, व्हेन दे डेवलप देमसेल्फ देन आवर फर्म आल्सो डेवलप। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक सो कि आपको ये समझ में आया होगा। और कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। मीन्स कि अब स्टाफिंग जो हम करते हैं वो प्रोसेस आपने देख लिया, लेकिन मेन जो इनिशियल पार्ट होता है या जो मेन एसेंस होता है स्टाफिंग करने का, वो मेन एसेंस क्या है, व्हाट इज द मेन एसेंस। तो द मेन एसेंस इज दिस थ्री: रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था रिक्रूटमेंट क्या होता है, कैसे रिक्रूट हम करते हैं, एडवर्टीजमेंट करके हमारे पास एप्लीकेशंस आ जाते हैं। दिस इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड द रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। उसके बाद हमने सिलेक्शन देखा। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। वाई नेगेटिव प्रोसेस? क्योंकि हमने देखा कि वी हैव अ प्लेस ऑफ 10 पीपल्स और उसमें से हमें 500 एप्लीकेशंस थे एंड वी आर liable or to select only 10 people in that 500। तो 490 peoples को हमें deselect करना पड़ा। और उसमें भी मान लीजिए, just suppose that 2 or 3 peoples are also eligible for that job but you are liable to select only 10 peoples। तो वहाँ से आपको नेगेटिव थोड़ा हो गया कि deselect आपको करना पड़ता है। एंड सेकेंड लास्ट वन इज ट्रेनिंग। आफ्टर selecting you give the training to your staffs so कि they go and do their development and do the development of your firm also। तो this is the essence of staffing। इसके बाद हम और भी सारी चीज़ें आती हैं और इसके बारे में what is recruitment is, what the selection is, what the training is, इन सारी चीज़ों को अब हम in next class की what is recruitment कैसे किया जाता है, what is internal recruitment, what is external recruitment, इन सारी चीज़ों के बारे में next class में बात होगी। I think so कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो देन डू द कमेंट। मैं इसको आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ब्रीफली और डीपली, जैसा इस टॉपिक का रिक्वायरमेंट होगा। टिल देन, थैंक यू क्लास।